Please let me know now. I am audible. Yes, guys, I am audible. Just give me a minute. Just a minute. Okay. Now I am audible. Fine. So हम कहाँ पे थे? Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. On Unacademy, you will get daily live classes. These daily live classes and structured courses, which are mainly available on Plus. Live test and quiz every day 8 AM को होता है, and everything that is happening on Unacademy is in recorded format, तो you will get unlimited access. अभी तक आपने अगर Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गो टू गूगल प्ले स्टोर, और अगर आप बहुत रिच हो तो यू कैन गो टू द ऐप स्टोर एंड गेट योर ऐप टू लर्न, एंजॉय learning. Okay, learning is a enjoy, guys. It is a fun. Okay, then this is about me, guys. What you need to do, this is my Telegram channel. Subscribe to this Telegram channel. This is my Unacademy profile. Follow me on Unacademy. Dedicate your hats to me on Unacademy, and don't forget to use ESK code for 10% discount on Unacademy subscription. Okay, these are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. देखिए, when you are going for a plus subscription of 12 month, instead of paying 49,500, ESK US code will give you 10% discount and you will be paying only 44,550 rupees. In case of an iconic subscription of 12 month, instead of paying 69,500, this ESK US code will give you 10% discount and you will be paying 62,550 rupees only. जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं आपको, आइकॉनिक के पर्सनल कोच मिलता है, डेली मीन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक. ठीक है, देन दीज आर द ऑप्शनल्स दैट आर अवेलेबल विथ अनअकैडमी. These are optional subscription prices and GS subscription prices. दोनों के लिए अलग अलग अभी आपको पे करना पड़ता है. And yes, there is a 36 month subscription option is also available. पहले सिर्फ 24 month तक था, अभी आप 3 years के लिए भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो in such a cheap price, 50 और 90,000 में. बस आपको एक बात याद रखनी है, you should use ESK US code because it will give you 10% discount on Unacademy subscription. Then okay, fine. So we were discussing about the how global warming might affect the food security. Please give me the what is the definition of global warming. Please tell me the definition of global warming. Till that time I will go ahead. Fine. So यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था that when the carbon dioxide levels increase in the atmosphere, it will affect food security. और उन्होंने ये कहा है कि जो ग्रोइंग सीजन है कहाँ पे, इन द ट्रॉपिक्स, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स दैट इज जस्ट बियॉन्ड 10 डिग्रीज ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 10 डिग्रीज बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो वहाँ पे आपको मेनली इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रोइंग सीजन जो है ना वो टेम्परेचर राइज होगा और देयर विल बी अ प्रॉब्लम. सो दिस इज अबाउट द CO2 लेवल. ठीक है, so what this global warming is doing, it is affecting the ocean life as well as it is affecting the food security. Okay, global warming is affecting the ocean life as well as it is affecting the food security. Increase in the surface temperature of earth. Okay, increase in earth's temperature. Okay, rise in global temperature. Okay, fine. So basically definition of global warming is that average increase in the average temperature of the अर्थ, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. अब ये एक पॉइंट हो गया. Extremely sorry guys, there were some disturbances, that's why I stopped the streaming. Now it will go smoothly, that's what I hope. As I already told you, when you are surrounded by the uneducated people now, these things happen. It is beyond my control because I am in a rented place, so you have to adjust this much. I really appreciate your patience. So let's restart our session. तो हमने basically ये देखा कि what is the meaning of global warming and how this global warming is going to impact the how this global warming is going to impact the food security. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक्सपेरिमेंटल प्रोब्स कि हाउ डू ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर एंड CO2 लेवल अफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड. as we already discussed, this CO2 increase in the concentration of CO2 normally इसमें क्या होता है, when the level of carbon dioxide increases in the atmosphere, it leads to
पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल एज इट लीड्स टू नेगेटिव इम्पैक्ट। दोनों टाइप का इम्पैक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का हमारे प्लांट के ग्रोथ पे। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, the rate of photosynthesis increases, and this increased rate of photosynthesis जो है it increases the growth of the plants in the same way। यहाँ आप देख लीजिए, इन्होंने बेसिकली एक स्टडी किया जिसे नाम दिया मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्वड इन CO2 एनहांस्ड हीट टॉलरेंस इन बर्म्यूडा ग्रास। अब ये इन्होंने किस पे किया है? ग्रास पे किया हुआ है रिसर्च, ठीक है। वी नीड टू डू दैट फॉर इन केस ऑफ ग्रेन्स एज वेल एज वी नीड टू डू दैट इन केस ऑफ फूड क्रॉप्स, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए या फूड ग्रेन्स हो गए, इन सब पे भी हमें उसी तरह का रिसर्च करना जरूरी है। तो इस रिसर्च का जो अल्टीमेट इन्हें सॉल्यूशन मिला या इस रिसर्च का जो भी रिजल्ट मिला ना, वो रिजल्ट ये है कि आपके जो भी प्लांट्स है ना, इफ देयर इज अ इंक्रीज्ड टेम्परेचर एंड इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, plant they do develop heat tolerance and suppressed heat induced damage। मतलब प्लांट ने क्या किया, ये जो बर्मुडा ग्रास है इसने एक्चुअली अडॉप्ट किया, बर्मुडा ग्रास ने एक्चुअली क्या किया, अडॉप्ट किया जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल में, उसे इन्होंने क्या किया, एडजस्ट किया, या आप कह सकते हो अडॉप्ट किया, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। क्लियर? So this is adaptation. So improved heat tolerance and the plant suppressed heat induced damage. Can you explain last point again, sir? I am late, sir, please. No, it was not a big deal. मैंने सिर्फ ये बताया था कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ये पहला पॉइंट बताया था। ग्लोबल वार्मिंग विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। और अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती भी है तो प्लांट्स दे आर गोइंग टू अडेप्ट। जैसे यहाँ पे बर्म्यूडा ग्रास ने किया, उसमें हीट टॉलरेंस भी डेवलप हुआ और हीट इंड्यूस्ड जो डैमेज है उसे उसने क्या किया, सप्रेस किया। वी आर गोइंग अहेड। देन प्लांट मीट किसे कहते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। एवरीबडी नोज मीट इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट? Most of the people they eat meat or non-vegetarian food as a source of the animal protein. In the same way when you are eating pulses, तो जितनी भी pulses है और जितने भी plants है which are rich in protein, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लांट मीट कहते हैं। विच आर रिच इन प्रोटीन, उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट मीट कहते हैं। तो यहाँ देखिए प्लांट मीट जो पल्सेस है वो, और आपका मीट क्या है? वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रास, राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रास, जवार इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रास, एंड बाजरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रास। सो बेसिकली जितने भी सीरियल्स है ना, they are all examples of grass, and pulses are not example of grasses. Okay, pulses grass का example बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्लांट मीट, इसमें देखिए grasses are C4 प्लांट। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जितने भी grasses है, grasses के मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिए। इवन sugar cane is an example of grass. All these grasses are C4 plant. This is very important for your preliminary examination. C4 plant, C3 plant, and CAM plant. These are the basics of biology or basics of the botany, and all these three are very important for your preliminary examination, because you know guys, यूपीएससी ने 2020 में एग्रीकल्चर पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे, उसी तरह एग्रीकल्चर रिलेटेड या प्लांट रिलेटेड जो भी है, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। जितने भी एग्रीकल्चर या प्लांट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या जो भी पॉइंट्स है ना, वो आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक पॉइंट याद रखेंगे आप। ऑल ग्रासेस आर C4 प्लांट। What is C4 plant will be explained, don't worry about that. Will you be able to remember this single fact that all grasses they are C4 plant? Means all the plants which are used as grains or all the plants which are cereals, they are example of C4 plant. ये याद रहेगा। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद जो भी फूड ग्रेन्स है, our staple food are C3 plant. मतलब wheat is an example, though it is a grass but it is a staple food, तो it is C3 plant. Rice is a C3 plant. Okay, लेकिन all grasses they are example of C4 plant. अब ये wheat और rice जो है ना, ये भी grasses है but they are food grains और food crop और staple food, तो they are C3 plant. थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तो सर ने कहा व्हीट एंड राइस ग्रास है, तो फिर सारे ग्रासेस तो C4 प्लांट है. यस, ग्रासेस और C4 प्लांट, लेकिन जो एक्चुअल ग्रासेस है ना, जो हम देखते हैं ग्रास लैंड में, दे आर C4. और जो हमारा स्टैपल फूड है विच इज अगेन बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ ग्रासेस, दैट इज C4 प्लांट. सो रिमेंबर, wheat and rice they are example of C3 plant. Wheat and rice they are example of C3 plant. तो इस स्लाइड से आपको दो बातें पता चली. There are some plants which are known as C4 plants, for example grasses. There are some plants which are known as C3 plant, for example food grains or our staple food. For example food grains or our staple food. Clear? ये दो पॉइंट क्लियर हो गए. अगेन नेक्स्ट देखिए, दीज बीन्स एंड लेग्यूम्स का मतलब क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट, दोज प्लांट्स हु हैव रूट नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स, उन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं. तो ये जो लेग्यूम्स है इन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम प्लांट मीट. व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम प्लांट मीट. फॉर एग्जांपल चना, ऑल दी, जिसे आप हिंदी में दाल कहते हो ना, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ प्लांट मीट. ओके, चिकपी, दे आर सिमिलर टू ग्रेन्स एंड दे आर प्लांट मीट. अब ये भी क्या है? ये जो है ना, ये C4 में आते हैं. कैसे डिफ्रेंशिएट करना है मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया दूंगा. यू कैन सिंपली यूज योर लॉजिक टू डिसाइड विच प्लांट इज अ C3 प्लांट एंड विच प्लांट इज अ C4 प्लांट. सो फ्रॉम दिस स्लाइड आपको बस एक पॉइंट याद रखना है. There are two types of plant. One is C3 plant and another is C4 plant. और एक टाइप होती है उसे CAM plant कहा जाता है, CAM plants. तो ये सब टेक्निकल चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी. अभी तीन चीजें पता चली. प्लांट तीन टाइप के हो सकते हैं, C3, C4 एंड CAM. वी आर गोइंग अहेड. और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, किसे प्लांट मीट कहा जाता है. तो पल्सेस आर नोन एज प्लांट मीट, बीन्स आर नोन एज प्लांट मीट्स, लेग्यूम्स आर नोन एज प्लांट मीट्स. दैट्स इट. बस इतना आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. वी आर गोइंग अहेड. नाउ हियर, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? There was a question in prelims, I guess 2013 or 14, और उस क्वेश्चन में था कि what exactly happens in photosynthesis? Light energy is converted into chemical energy. आपको ऑप्शन दिए गए थे फ्री एनर्जी. ऑप्शन क्या थे? फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ये आपके ऑप्शन थे उस प्रीलिम के क्वेश्चन में. तो वन बाय वन हम देखते हैं. नियरली 99% पीपल नो द meaning of photosynthesis are that plant has much protein, that is legumes or plant meat. Yes Riddhi. तो चलिए, what is photosynthesis? It is a process through which green plants and certain other organism, हमने देखा था plants they do photosynthesis, as well as there are some bacteria which are also into photosynthesis. Even there are some fungi which do photosynthesis. So it's not only plant, along with plant, bacteria also do photosynthesis. So what exactly happens in photosynthesis? Light energy is transformed into chemical energy. क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. बस आपको यही याद रखना है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूज्ड टू कन्वर्ट. देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 in the presence of sunlight, they are converted into C6H12O6, that is glucose, okay, plus O2, that is oxygen is released. और यहाँ पे क्या तैयार होता है? ओके फाइन, इतना बनता है. तो क्या हो रहा है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम मिनरल्स they are, देखिए, water and carbon dioxide they are converted into energy rich organic compounds and oxygen. Water and carbon dioxide is converted into energy rich
compounds, that is C6H12O6. This is photosynthesis. इसे हम photosynthesis इसलिए कह रहे हैं because of the sunlight. We are calling this photosynthesis because it takes place in the presence of sunlight. Can anybody tell me where exactly photosynthesis takes place in the plant? We are going to the next slide. So this is the sunlight, the carbon dioxide, the water. In the presence of sunlight, that is photosynthesis, what we get? We get glucose, that is sugar, and oxygen. This is the chemical reaction of photosynthesis. Next, now what exactly the meaning of C3 plant? One by one. अभी आपने देखा था, पता ये on the basis of metabolic pathways. Now what is the meaning of metabolic pathways? These are the pathways through which carbon dioxide and water, they are converted into glucose. ये प्रोसेस जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, हर प्लांट में जो केमिकल रिएक्शंस होती है, स्टेजेस होती है, स्टेप्स होती है, वो अलग अलग होती है. तो उसके बेस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, C3 प्लांट, C4 प्लांट्स एंड द कैम प्लांट्स. इन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज. दिस इज मेटाबॉलिज्म, कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू ग्लूकोज. दिस इज मेटाबॉलिज्म. इस कन्वर्जन के अलग अलग तरीके हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दोज पाथवेज वी डिफरेंशिएट और क्लासिफाई प्लांट्स. सो गाइस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. फोटोसिंथेसिस इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिलता है? यू विल फाइंड अ पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. ओके, chlorophyll is the pigment which is present in the chloroplast, and in this chloroplast this reaction takes place in which glucose and oxygen, they are produced from the carbon dioxide and water in the presence of sunlight. We are going ahead. So C3 plant कौन से? Cereals like barley is an example of C3 plant, oat is an example of C3 plant, rice is an example of C3 plant, wheat is a C3 plant. आपने ये alfalfa, it is an example of grass. Alfalfa, it is a African grass which is nowadays being grown in India also as a fodder crop. Animals को feed करने के लिए grow किया जाता है. तो alfalfa is a C3 crop. Cotton, it is an example of cash crop, but it is a C3 plant. Cotton is a C3 plant. Eucalyptus, बताइए यूकैलिप्टस ये क्या है? इन्वेसिव स्पीसीज है. इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया. हमने यूकैलिप्टस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका. तो यूकैलिप्टस इज एन एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट. सनफ्लावर इज अ C3 प्लांट. सोयाबीन इज अ C3 प्लांट. शुगर बीट is a C3 plant. Potato is a C3 plant. Tobacco is a C3 plant and chlorella. So these are the some examples of C3 plants. आपको ये example बस एक बार read करने, there is no need to remember. इनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इनको एक बार रीड कर लो, आपको अपने आप याद रह जाएगा. So these are some examples of C3 plant. Now आपने अब तक क्या पढ़ा कि on the basis of metabolic pathways there are three types of plant, either C3 or C4 or CAM. You don't know what exactly C3 plant is, what exactly C4 and what exactly CAM. ये हमें पता नहीं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये पहला पॉइंट आपको पता चला. दूसरा पॉइंट आपको पता चला है that what is photosynthesis, what exactly happens in photosynthesis and where exactly this photosynthesis takes place. Now the next concept that I am going to explain is very important and very crucial for your UPSC prelims 2021 because it belongs to the basics of biology, but it is a ignored part, and you already know UPSC loves to ask question on ignored part. आप अगर किसी भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को पूछोगे ना what is photosynthesis, most of the 99% student will easily answer what is photosynthesis. but उसी मोमेंट आप उस बंदे को पूछ लो, साइंस स्ट्रीम के किसी भी बंदे को उसे पूछ लो what is photo respiration, 50% students will not be able to answer what is photorespiration, and this is what UPSC does. UPSC बस इसी पे क्वेश्चन पूछेगी क्योंकि UPSC चाहती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करें,
गलत आंसर दे, ताकि वो कम से कम स्टूडेंट को मेंस में लेकर जाए. दैट इज देयर लाइक नेसेसिटी. Now please listen to me very carefully. What is photorespiration? Sir, is it true that during night photosynthesis plant release CO2? Yes, Aniket Ahire, that's true. During night plant में mainly respiration होता है और during daytime plant में respiration and photosynthesis दोनों होता है. ठीक है, clear? Now what is photorespiration? Number one, it is a wasteful pathway. वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड आपको ये कंसेप्ट समझनी भी है और याद भी रखनी है. इट इज अ वेस्टफुल पाथवे दैट अकर्स व्हेन कैल्विन साइकिल एंजाइम रूबिस्को एक्ट्स ऑन ऑक्सीजन रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो फोटोसिंथेसिस होता है इन विच CO2 एंड H2O दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, करेक्ट. तो ये कन्वर्जन करने के लिए देयर इज अ एंजाइम. हम इसके टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहे हैं. व्हाट इज कैल्विन साइकिल, नॉट रिक्वायर्ड एटलीस्ट नाउ. हमें सिर्फ फोटो रेस्पिरेशन ये कंसेप्ट समझनी है. तो यहाँ देखिए, देयर इज वन एंजाइम कॉल्ड रूबिस्को. ओके, दिस इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल, और दिस रूबिस्को एंजाइम एक्ट्स वेल व्हेन देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो रूबिस्को विल एक्ट ऑन ऑक्सीजन. Instead of acting on carbon dioxide, Rubisco will act on CO2 and that leads to the wastage of energy. And इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, wasteful pathway. तो what happens in photorespiration? Rubisco enzyme, which is involved in the photosynthesis process, this Rubisco enzyme acts on oxygen, but it is supposed to act on CO2. So instead of acting on CO2, if this enzyme acts on oxygen, so it leads to the development of one metabolic pathway जिसे हम कहते हैं photorespiration. तो one by one, what is photorespiration? It is a wasteful pathway. What happens in photorespiration? Rubisco enzyme acts on oxygen rather than CO2. Clear हो गया ये वाला point? Good morning Pallavi. We are going ahead. So the majority of the plants, जो just a minute. So the majority of the plants that are C3, जिनमें जो C3 प्लांट है ना, उनमें ये फोटो रेस्पिरेशन होता है, which have no special features to combat photorespiration. These C3 plants do not have any adaptation और feature to combat photorespiration. and जिस प्लांट में photorespiration होता है, it is a wasteful pathway. याद रहेगा पहला पॉइंट, photorespiration is a wasteful pathway. Photorespiration takes place in which type of plant? It takes place in C3 plant. That's why C3 pathway or C3 metabolic pathway, it is a wasteful pathway. It is a wasteful pathway. यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. गुड मॉर्निंग राजेश्री, आनंदिता, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग वनहॉन फ्रॉम गुवाहाटी, वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, क्लियर. अब आइए आगे. अब यहाँ पे आपको C4 प्लांट के बारे में पता चलेगा. देखिए, C4 plants minimize photorespiration. C4 plants minimize photorespiration. अब ये कैसे करते हैं मुझे बताइए. क्या anybody tell me what exactly happens in photorespiration? What exactly happens in photorespiration? चलिए जल्दी से बताइए, क्विकली बताइए. सो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका जो रूबिस्को एंजाइम है, इट एक्ट्स ऑन कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. उसका एक रीजन है बिकॉज देयर इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. पल्लवी शर्मा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए C3 के. बेस्ट एग्जांपल कॉटन, व्हीट, राइस, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ C3 प्लांट्स. तो देखिए, C4 plant minimize photorespiration means they minimize the wastage of energy and water by separating initial CO2 fixation and the Calvin cycle in space, performing these steps in different cell types. So basically क्या करता है C4 plant ensure करता है
कि this CO2 is available in enough amount for Rubisco so that it will not act on oxygen, instead it will act directly on CO2, so there will be no wastage of energy. This is how C4 plant minimize photorespiration. This is the adaptation. C4 प्लांट जो है ना, दिस इज द एडेप्टेशन जो C3 प्लांट ने अभी तक अचीव नहीं किया है, C4 प्लांट ने अचीव किया है. दैट्स व्हाई C4 प्लांट कैन सर्वाइव इन ड्राउट प्रोन एरिया. C4 plants can survive in desertic conditions. C4 plant can manage water stress, which is not possible for C3 plant. ठीक है, वन बाय वन पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी. तो पहला पॉइंट आपको पता चला, व्हाट हैपेंस इन C3 plant. Photo respiration takes place in C3 plant. What happens in C4 plant? Photo respiration is minimized in C4 plant. इसमें भी होता है फोटो रेस्पिरेशन, बट क्या होता है, इट इज मिनिमाइज्ड. अब आते हैं आपको क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. Plants minimize photorespiration and save water by separating these steps in time between night and day. In case of CAM plant, ये जो प्रोसेस है मतलब दे मिनिमाइज फोटोरेस्पिरेशन बाय परफॉर्मिंग दीज प्रोसेसेस. जैसे फोटोसिंथेसिस डे में करेंगे और फोटोरेस्पिरेशन नाइट में होगा. तो इस तरह से डिवाइड करने की वजह से क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन मिनिमाइज होता है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक पाथवेज. वन इज C3 plant, another is C4 plant, and third one is CAM plant. So these are the 3 types of plants based on the metabolic pathway. C3 में photorespiration takes place, which is a wasteful pathway. C4 में it is minimized, photorespiration is minimized, and in CAM it is again minimized by separating steps during night and during day. अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ये एग्जैक्टली फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो सारी डिटेल आपको पता चलेगी. इतना अभी याद रखना है आपको. सी मेरा जो एटीट्यूड या अप्रोच होता है ना, वो बेसिकली ये होता है कि आपको धीरे धीरे आराम से जो बहुत डिफिकल्ट टर्म्स है ना उनके साथ अवेयर कराना. एकदम से अगर मैं डिटेल में बता दूंगा ना आपको C3 C4 और कैम में एग्जैक्टली टेक्निकली क्या होता है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट. प्रियंका सबकाल, मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है it is the pathway through which carbon dioxide and water are converted into glucose C6H12O6 में. okay, yes it's true कि नाइट में ट्रीज ऑक्सीजन लेते हैं and CO2 छोड़ते हैं. yes, Rubisco, if your Rubisco acts on O2, that is a problem that will lead to photo respiration. Wheat, barley, rice, cotton are examples of C3 plant. correct खुशबू. C3 के एग्जाम्पल राइस, व्हीट, शुगर मीट, पोटैटोज, टोमेटोज, etc. वेरी गुड 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 वेरी गुड. चलिए आगे. अब आइए C3 प्लांट में. ठीक है, अब आपको मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज C3 प्लांट. अभी तक आपको C3 प्लांट के बारे में क्या पता है. C3 प्लांट क्या करते हैं, दे डू फोटो रेस्पिरेशन विच इज अ wasteful pathway. correct, they do photorespiration which is a wasteful pathway. एंड C3 प्लांट के आपको एग्जाम्पल पता है. एंड लास्ट पॉइंट जो आपको C3 प्लांट के बारे में पता है वो ये कि ये आपको मेनली स्टेपल फूड या फूड क्रॉप्स में C3 प्लांट्स मिलेंगे. क्लियर. नाउ वन बाय वन. C3 कार्बन फिक्सेशन. सो C3 पाथवे is the pathway through which carbon is fixed. C3 pathway is the pathway through which कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड. अब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड हुआ मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 एंड ऑक्सीजन. इसे कहते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन. सो C3 is a carbon fixation pathway and it is the most common of 3 metabolic pathways for carbon fixation in photosynthesis. Another 2 are C4 and CAM. ये आपको पता है. देखिए आपको अभी नई चीजें क्या क्या पता चली. नंबर 1, C3 is a metabolic pathway. ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन किस चीज का, थ्रू C3 कार्बन इज फिक्स्ड और कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड. दूसरा पॉइंट आपको पता चला, C3 is a metabolic pathway which is present or photosynthesis involve different metabolic pathways. One of that metabolic pathway is C3 pathway. तो ये C3 photosynthesis का पार्ट है. एंड थर्ड पॉइंट जो आपको C3 के बारे में पता चला, it is one of the most common metabolic pathway
क्योंकि क्लोज टू मैं अगर कहूँ तो 90% से ज्यादा प्लांट जो अर्थ पे आपको मिलते हैं दे आर C3 प्लांट। ओके, मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे क्लियर। दूसरे दो मेटाबॉलिक पाथवे कौन से, C4 एंड कैम। क्लियर हुआ। C3 का ये पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया। देखिए गाइस, आपको ये टेक्निकल लग रहा होगा लेकिन इट वाज इन न्यूज। देखिए आप अगर यहाँ न्यूज पढ़ोगे, एग्जैक्ट अगर न्यूज पढ़ोगे, देखिए देयर इज अ मेंशन ऑफ C3। ये न्यूज में ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ना, दिस इज गिवन इन द हिंदू न्यूज़पेपर। सो द हिंदू में जब C3 को मेंशन किया गया है तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो एटलीस्ट बेसिक थिंग्स ऑफ द C3। वी नीड टू नो द बेसिक थिंग्स ऑफ द C3। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी बेसिक चीजें पता चल गई है। अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साइंस की तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये बियर करना पड़ेगा और आपको ये याद भी रखना पड़ेगा। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये मैं बहुत बार बाद में इतनी बार रिवाइज करूंगा ना कि आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। सो व्हाट इज C3? इट इज अ कार्बन फिक्सेशन। व्हाट इज C3? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन metabolic pathways in the plant. What is C3? Through this carbon is fixed. What is C3? It is part of the photosynthesis. What are the other two metabolic pathways, C4 and CAM? These are the other metabolic pathways. We are going ahead. So what exactly happens in C3, or how exactly carbon dioxide is fixed in C3 plant? So this process converts carbon dioxide एंड राइबुलोज बाइफॉस्फेट, जिसे हमने अभी नाम दिया था रुबिस्को। ओके, ये जो एंजाइम है इन दोनों को कन्वर्ट करती है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। सो CO2 plus H2O plus रुबिस्को। Now is it fine? Like everything is fine and I am audible and visible to each and everybody? Please let me know. I hope now it is working properly so that we can start our session. चलिए जल्दी से बता दीजिए, am I audible and visible to each and every student? Yes, I know there are many disturbances today. What we can do? अभी जो आया था ये आया है, it is a technical issue. So इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं। पहले जो था वो थोड़ा सा मैंने मेरी तरफ से ही स्टॉप किया था because there was a problem from the outside, sound का issue हो रहा था। So please let me know, am I audible and visible now? Everything is fine? अभी ठीक है सब कुछ? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। It's clear, Adish? Yes sir. Okay, great. Everything is clear and everything is fine now. So let's start. So we were discussing about the C3 plant. You already know what exactly C3 is. It is the metabolic pathway for carbon fixation which takes place in photosynthesis. We call this C3 because 3-phosphoglycerate नाम का एंजाइम यहाँ पे बनता है। ठीक है, this reaction occurs in all plants as the first step of Calvin-Benson cycle. छोड़ दीजिए इसे, आपको बस रीड करना है एंड लीव करना है। It is not important for prelims. Okay, now plants that survive solely on C3 fixation. Now this whole slide is very important for your prelims 2021. So please listen to me very carefully. पहले जो था ना वो टेक्निकल चीजें थी, यूपीएससी टेक्निकलिटीज में बिल्कुल ज्यादा नहीं जा सकती। ओके, यूपीएससी बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में बिल्कुल नहीं जाती, इसलिए हमें सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड उस पर्टिकुलर टेक्निक के एप्लीकेशन समझना जरूरी है। ओके, सो द प्लांट्स दैट सर्वाइव सोनली ऑन C3 फिक्सेशन टेंड टू थ्राइव इन एरियाज where sunlight intensity is moderate. So if a plant is dependent solely on C3 fixation, so that plant can survive only in those areas where sunlight intensity is moderate. पहला पॉइंट याद रखिए, sunlight intensity is moderate। जैसे वीट का एग्जांपल लीजिए, वीट बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो नहीं कर सकता, ये पहली रिक्वायरमेंट होती है C3 प्लांट को सरवाइव करने के लिए। व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ C3 प्लांट? दैट टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द C3 प्लांट जो है ना आपको सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगे। टेम्परेचर मॉडरेट, सनलाइट मॉडरेट एंड जो आपका ग्राउंड वाटर है शुड बी प्लेंटीफुल। ग्राउंड वाटर शुड बी प्लेंटीफुल। इसका मतलब क्या है कि C3 प्लांट कैन नॉट टॉलरेट सनलाइट
C3 plant cannot tolerate high temperature. Even C3 plant cannot tolerate water stress. They need enough or plentiful groundwater. They need moderate temperature. They need sunlight intensity that should be moderate. And most important, they need carbon dioxide concentrations which are around 200 ppm और हायर. अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 200 ppm से कम है तो these C3 plants cannot survive. Even these C3 plant cannot survive if concentration of carbon dioxide is very high. तो देखिए C3 plant की रिक्वायरमेंट क्या है. नंबर 1, सनलाइट शुड बी मॉडरेट. नंबर 2, टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट. नंबर 3, ग्राउंड वाटर शुड बी plentiful. नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मिनिमम 200 ppm और हायर. ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तभी C3 प्लांट सरवाइव कर सकते हैं. और C3 के एग्जांपल है वीट एंड राइस. सो कैन आई मेक वन स्टेटमेंट अबाउट C3 प्लांट दैट दीज प्लांट्स आर वाटर इंटेंसिव, और कैन आई से दैट C3 प्लांट कैन नॉट टॉलरेट वाटर स्ट्रेस. यस, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. यस, C3 प्लांट कैन नॉट टॉलरेट वाटर स्ट्रेस बिकॉज उनका जो पाथवे है वो उनको वाटर स्ट्रेस को टॉलरेट करना अलाउ नहीं करता. ओके गाइस, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इट इज ब्लर. इज इट? आई गेस इट्स नॉट. चलिए आगे. अब ये जो C3 प्लांट है दे ओरिजिनेटेड इन मेसोजोइक एंड पैलियोजोइक इरा. नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है. चलिए आगे. ठीक है, लेकिन विजिबल तो है ना आप सभी को ठीक से. सर 1870 में फिर C3 अच्छे से ग्रो नहीं होते थे. नहीं अधीश, तब भी ग्रो होते थे. 1870 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन था वो 280 ppm था. ठीक है ना, 280 ppm के आसपास था. देखिए 95% ऑफ द अर्थ्स प्लांट्स बायोमास बिलोंग्स टू C3. C3 plant originating during Mesozoic and Paleozoic eras predate the C4 plants and still represent approximately 95% of the Earth's plant biomass. So 95% plants that are present on the Earth today, they are C3 plant or they have a C3 metabolic pathway of photosynthesis. ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. ठीक है, इसीलिए तो हमने कहा था ना कि C3 is the most common metabolic pathway. क्लियर. नेक्स्ट, राइस, व्हीट, सोयाबीन एंड बार्ली. ये तो आपको पता ही, दीज आर C3 प्लांट. तो इस स्लाइड से आपको पहले तो ये पॉइंट याद रखना है. व्हाट आर द एग्जैक्ट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ C3 प्लांट? मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट सनलाइट, concentration of carbon dioxide and the plentiful groundwater. Examples of C3 plant भी आपको पता चल गए. और 95% plants on the earth they are C3 plant. ये भी आप लोगों को अभी पता चल गया. अब हो गया इजी. Now if I say C3 plant, अब आपको डिफिकल्ट लगता है? नहीं लगता ना. It is very simple. Hello Siddharth Yadav, how's you and where are you from? Okay, चलिए we are going ahead. So C3 plants cannot grow in very hot areas. Remember, C3 plants cannot grow in very hot areas. That's why जब global warming होगी, can anybody tell me कि कौन से areas currently hot है? कौन से एरियाज ऑन अर्थ दे हैव हाईएस्ट टेम्परेचर? तो यस, ट्रॉपिकल एरियाज हैव हाईएस्ट टेम्परेचर ऑलरेडी. जैसे अगर आप इक्वेटर पे जाओगे तो इक्वेटर पे यू विल फाइंड हाईएस्ट टेम्परेचर. तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज. इक्वेटर या ट्रॉपिक्स के बीच में क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज टेम्परेचर C3 plants will not be able to grow in tropical areas. C3 plant कौन से? We will not be able to grow wheat, we will not be able to grow rice, we will not be able to grow barley, we will not be able to grow cotton, we will not be able to grow sweet potatoes. बहुत सारे एग्जाम्पल. तो बेसिकली जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी, that global warming will impact, or because of that global warming, barley, we will not be able to grow barley in tropical areas, we will not be able to grow oat in tropical areas, rice in tropical areas, wheat in tropical areas, alfalfa in tropical areas, cotton in tropical areas.
eucalyptus in tropical areas, sunflower in tropical areas, soyabean in tropical areas, sugar beet, potato, tobacco, chlorella, ये कोई भी प्लांट हम ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑल दीज प्लांट्स आर C3 plants and C3 plants cannot grow in very hot areas. C3 plants cannot grow in very hot areas. याद रहेगा because Rubisco incorporates more oxygen into RUBP as temperature increase. ये रीजन हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये रीजन साइंस के स्टूडेंट के लिए जरूरी है, हमारे लिए बस इतना पता होना जरूरी है कि C3 प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन वेरी हॉट एरियाज। तो अगर अब मैं ये स्टेटमेंट करूं, सर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर मेजर होता है लाइक 50 डिग्री सेल्सियस और मोर, यस देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मेजर दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस और मोर। 50 डिग्री पे तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूं, मैं ये स्टेटमेंट करूं दैट ग्लोबल वार्मिंग विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फूड सिक्योरिटी एंड इट विल मेनली अफेक्ट द मेजर फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड मेजर फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज आर लोकेटेड मेनली इन ट्रॉपिकल एरियाज। तो अब आपको लिंक पता चल गई कि वाई increased temperature will have negative impact on food security। मैं पूरी लिंक बताता हूँ। most of the staple food or food grains they are C3 plant। when the temperature increases C3 plants they cannot grow in hot areas। वो hot areas में grow क्यों नहीं हो सकते? because उनका जो photosynthesis का pathway C3 उसमें वो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करना स्टार्ट करते, वो उसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाना। so when there is a global warming, average temperature of the tropical areas will increase. Because of the increased average temperature of tropical areas, C3 plants will not be able to grow in these tropical areas. All food grain or staple food they belong to C3 plants. So indirectly, food crop we will not be able to grow food crops in tropical areas, and that will affect the food security because of the global warming or because of the increased temperature। हो गया क्लियर अभी? अब ये स्टेटमेंट आपको इजी लग रहा है? अब ये स्टेटमेंट सभी को इजी लग रहा है? हाउ ग्लोबल वार्मिंग माइट अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। नाउ इजंट इट वन ऑफ द इजीएस्ट स्टेटमेंट दैट यू एवर केम अक्रॉस? क्योंकि आपको इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो रीजन है, इसके पीछे का जो इश्यू है वो आपको समझ में आ गया। नो रिद्धि, जम्मू एंड कश्मीर इट इज अंडर इन ट्रॉपिकल एरियाज। इवन आपका उत्तर प्रदेश इज इन टेम्परेट एरिया, इट इज नॉट ट्रॉपिकल। जम्मू कश्मीर ट्रॉपिकल में नहीं है, जम्मू कश्मीर ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं है, उत्तर प्रदेश ट्रॉपिकल में नहीं है, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा दे आर नॉट इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में इंडिया में आते हैं पूरे साउदर्न स्टेट, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, देन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, ये स्टेट इंडिया के ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। बाकी के नहीं आते क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब किसी को कोई डाउट है C3 प्लांट पे? एनी डाउट? हो गया ना क्लियर? C3 वाला मैंने पूरा क्लियर कर दिया। सो C3 प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन हॉट एरियाज। रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम्स। सर एंजाइम्स मेनली मेड अप फ्रॉम प्रोटीन एंड हाई टेम्परेचर कॉजेस प्रोटीन डीनेचुरेशन, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर। अनिकेत यू कैन से सो, बट यहाँ पे उन्होंने जो रीजन दिए ने अभी, जो मेरा लॉजिक कहता है दैट लॉजिक सेज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें बस इतना याद रखना है C3 plants cannot grow in very hot areas because they need moderate temperature, they need moderate sunlight, they need plenty of groundwater, and they need a particular concentration of carbon dioxide CO2। okay, so when the temperature increases तो C3 plant में क्या होता है? it leads to photorespiration, it leads to photorespiration, and we know what is photorespiration. Photorespiration is the westful pathway, ठीक है? It is the westful pathway. So this leads to photorespiration, also known as oxidative photosynthetic carbon cycle or C2 photosynthesis, which leads to net loss of carbon and nitrogen from the plant and can therefore limit growth। तो जब एवरेज टेम्परेचर सराउंड का इंक्रीज होता है सराउंडिंग का, तो उस केस में C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोटो रेस्पिरेशन देयर इज अ लॉस ऑफ कार्बन and there is a loss of nitrogen, and we already know
Nitrogen and carbon, these are the two essential elements which are required for the proper growth of the plant. Without them plant की कोई भी growth properly नहीं हो सकती. So global warming will limit the growth of plant because less carbon and less nitrogen is available to plant. Now why less carbon and less nitrogen is available to the plant? Because when the average temperature of the surrounding increases, C3 plant, that is most of the staple food plants or food grain plants, they will start photorespiration, and that photorespiration leads to loss of carbon and nitrogen, and that will limit the growth. And this is how global warming will affect the food security. It will affect the food security. हो गया यहाँ तक क्लियर? सभी का ये पॉइंट क्लियर हो गया? वी आर गोइंग अहेड. ठीक है. सो आई गेस बाकी का जो है वी विल डिस्कस टुमारो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिस्टर्बेंसेस थे. मेरा भी बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हुआ इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से. सर हम लोग न्यू स्टूडेंट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं मनी सिंह, आप आज से अभी से कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आई विल इंश्योर कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. तो ये बाकी के जो टॉपिक्स है दैट वी विल डिस्कस टुमारो. सो गाइज, फॉर न्यू स्टूडेंट, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल. Then this is my Unacademy profile. What you need to do, you need to follow me on Unacademy. You need to dedicate your heads to me on Unacademy, and you need to use this SKUS code so that you will get 10% discount on Unacademy subscription, whether you are taking plus subscription or you are taking iconic subscription. और एक पॉइंट याद रखिए, whenever you are going for subscription, don't opt for loan. Instead use debit card, use credit card, use Paytm, use UPI, कोई भी और ऑप्शन यूज कीजिए. लेकिन जो अनअकैडमी के थ्रू से कंपनीज लोन दे रही है उनको ऑप्ट नहीं करना है आपको. ठीक है. क्लियर. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे जो क्लासेस होते हैं एवरीडे एट 8 AM ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड एवरीडे एट 11:15 AM ऑन यूट्यूब. 8 AM वाली क्लास में हम मेनली डिस्कस करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और यूट्यूब वाली क्लास में हम क्या करते हैं, वी डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी मैपिंग. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या अनाउंसमेंट आप लोगों को याद रखनी है, वो ये कि मैं अनाउंसमेंट भूल गया, बट सर रूबीज को ऑक्सीजन को तब अफेक्ट करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो. यस अधीश, करेक्ट, यू आर करेक्ट. ओके सर, आई विल सब्सक्राइब योर टेलीग्राम चैनल. थैंक यू मनी सिंह. और एक पॉइंट मुझे बताना था आपको, जस्ट मैं भूल गया. इट्स ओके, नो इशू. वी विल मीट टुमारो एट 8 AM. हाँ, याद आ गया. देखिए हमारा जो आज के करंट अफेयर 11:15 का जो अभी का सेशन है ना, इसकी जो नोट्स है वो PDF फॉर्मेट में कल अपलोड होगी. ओके, आई विल अपलोड नोट्स और PDF जो अभी पढ़ाई ना वो आई विल अपलोड टुमारो. आज हमने बहुत कम पढ़ा है इसलिए वो फिजिबल नहीं है उसको अपलोड करना. आज के और कल की PDF दोनों एक साथ में कल अपलोड करूंगा. ओके, so thank you very much guys. Bye bye, take care and sayonara. We are meeting tomorrow at 8 AM on Unacademy learning app for the test. Till that time, bye bye.